کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جس آزادی کا خواب ہمیں پچھلے کئی سالوں سے دکھایا جا رہا ہے اس نے عورت کو خوشی دی ہے یا صرف ظلم و ستم؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ باہر نکلو گی تو ترقی کرو گی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج عورت کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ اور تنہا محسوس کر رہی ہے؟ میرے عزیزو، آج ہم ایک ایسے دھوکے کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے حقوق کا نام دے کر بیچا جا رہا ہے اور غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ اس نے عورت کو آزاد کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر کے ملکہ کے عہدے سے نکال کر بازار کی ایک ضرورت بنا دیا۔ آج صابن بیچنا ہو یا گاڑی، عورت کی نمائش کے بغیر ان کا کام ہی نہیں چلتا۔ کیا یہ آزادی ہے یا عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی کتابی بحث میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ سچی اور کھری باتیں کریں گے، بلکہ ہم یہ جانیں گے کہ کیا برہنہ ہونا واقعی ترقی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو شاید جانور ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے۔ اور اسلام نے عورت کو شہزادی کیوں کہا؟ اور وہ کون سا جال ہے جس میں ہماری نسلوں کو پھنسایا جا رہا ہے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آئے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے حقیقی مقام کو پہچانے، تو اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کی بات آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان والوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ اس نے عورت کو پرائیویٹ لائف یعنی گھر کے سکون سے نکال کر پبلک پراپرٹی بنا دیا ہے۔ پہلے عورت اپنے گھر کے محافظ اور مرکز تھی جہاں اسے عزت اور تقدس حاصل تھا، لیکن آج اسے سڑکوں پر، بل بورڈز پر اور شوز میں صرف اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا دل بہلایا جا سکے۔ غور کیجئے، جس عورت کو آزاد کہا گیا اسے آفس میں اور بازاروں میں گاہکوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک نمائشی چیز بنا دیا گیا۔ کیا یہ آزادی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے مطابق خود کو پیش کرے؟ اب آئیے ایک کڑوی سچائی کا سامنا کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی اشتہار اٹھا کر دیکھ لیں آپ، چاہے وہ شیو کرنے کی مشین ہو، چاہے وہ گاڑی کا ٹائر ہو، چاہے وہ سیمنٹ کی بوری ہو، ہر جگہ عورت کو دکھانا ضروری کیوں؟ کیا سیمنٹ کا عورت کی خوبصورتی سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق اشتہارات میں عورت کے جسم کو محض توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ یہ حقوق نہیں ہے، یہ سراسر تجارتی استحصال ہے، جہاں عورت کی حیا کو بیچ کر، جہاں عورت کی عزت کو لوٹ کر، جہاں عورت کے جسم کو یوز کر کے ڈالر کمائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم برابری کے نام پر کیا گیا۔ امریکہ نے کہا کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، اس لیے عورت کو بھی کما کر لانا چاہیے۔ بظاہر یہ بات بڑی اچھی لگی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی عورت پر یہ ڈبل بوجھ ہے۔ ایک، اسے باہر جا کر مردوں کی طرح 9 سے 5 کی سخت ڈیوٹی بھی کرنی ہے، اور گھر آ کر کھانا، صفائی اور بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے۔ مرد گھر آ کر سو جاتا ہے، لیکن عورت کی ڈیوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسلام نے مرد کو کمانے والا بنایا تھا تاکہ عورت معاشی فکر سے آزاد ہو کر سکون کے ساتھ اگلی نسل کی تربیت کر سکے۔ امریکہ نے عورت کو معاشی دوڑ میں شامل کر کے اس کی فطری نزاکت اور آرام کو چھین لیا۔ اسے آزادی کا نام دے کر دراصل ایک ایسی مزدوری بنا دیا گیا جس کا کوئی اختتام نہیں۔ ذرا سوچئے، وہ عورت زیادہ سکون میں ہے جس کے اخراجات کی ذمہ داری باپ، بھائی یا شوہر پر ہو اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، یا وہ عورت جو ایک طرف مہنگائی سے لڑ رہی ہے اور دوسری طرف اپنی عزت بچانے کے لیے بازار کے نام نہاد معیاروں پر پورا اترنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی عورت کو حقوق ملے ہیں یا اس کا بوجھ ڈبل بڑھا دیا گیا؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ کسی کی سوچ بدل سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اب بات کرتے ہیں اس لہر کی جسے فیمینزم کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ تو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے نعروں نے معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو سننے میں یہ کتنا آزادانہ لگتا ہے، لیکن گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ نعرہ عورت کو رشتوں سے کاٹ کر
अकेला कर देता है। अगर हर कोई सिर्फ अपनी मर्जी चलाएगा तो फिर कुर्बानी और मोहब्बत और वफा का रिश्ता कहाँ जाएगा। ये नारा औरत को खानदान से बगावत पर उस्काता है, जिसका नुकसान आखिरकार खुद उस औरत को ही उठाना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यूरोप के कई ममालिक में तलाक का मामला 50% से भी ज्यादा हो चुकी है। वहाँ घर बनते नहीं, सिर्फ बिगड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? वो मासूम बच्चे जिनके सर से माँ की ममता और बाप का साया छीन लिया जाता है। क्या वो आजादी काम की है जो आपको अपने ही बच्चों से दूर कर दे, जो आपको एक बूढ़ी और अकेली औरत बनाकर किसी ओल्ड होम में फेंक दे जहाँ कोई हाल पूछने वाला भी ना हो। फेमिनिज्म कहता है कि आप आजाद हैं, आपको किसी मर्द यानी बाप, भाई या शौहर की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत में वो आपको अकेला कर रहा है। कमेंट्स में जरूर बताएं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे हमारे मुआशरे को जोड़ रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, अब तक हमने बात की कि अमेरिका ने औरत को क्या दिया। अब आइए देखते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम अता किया है। इस्लाम ने औरत को मर्द के मुकाबिल मिलाकर किसी जंग में नहीं झोंका, बल्कि उसे मुहतरम बनाया है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम मर्द बनकर दिखाओ, बल्कि इस्लाम कहता है कि तुम औरत हो, तुम एक कीमती हीरा हो। औरत की कीमत और पहचान औरत होने में है और मर्द की कीमत और पहचान मर्द होने में है। इस्लाम की खूबसूरती देखिए कि जहाँ जमाने जाहिलियत में बेटियों को बोझ समझा जाता था, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। बेटी इस्लाम में कोई बोझ नहीं, बल्कि वो शहजादी है जिसके आने से घर में अल्लाह की रहमत आती है। वो वालिदैन के लिए जन्नत का परवाना है। क्या दुनिया का कोई निजाम बेटी को ये प्रोटोकॉल देता है? फिर जब वो बीवी बनती है तो उसे घर की मलिका करार दिया गया। कुरान कहता है वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो, यानी एक दूसरे का पर्दा, एक दूसरे की जीनत। मेरे आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए बेहतर है। इस्लाम ने बीवी को सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि इस रिश्ता जोड़ने को निस्फ ईमान करार दिया। औरत शोहर का सुकून और दीन की तकमील का सबब है, कोई मुलाजिमा ये सिर्फ बाजार की जीनत नहीं। आपको जानकर यह हैरत होगी कि यूरोप में जब माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे ओल्ड होम में भेज दिया जाता है, उसे ओल्ड होम में फेंक दिया जाता है। लेकिन इस्लाम कहता है तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया, आपने 3 मरतबा फरमाया तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, और चौथी मर्तबा आपने फरमाया तेरा बाप। सोचिए, जिस हस्ती की खिदमत को अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे ज्यादा अहमियत दी हो, क्या उसे किसी और आजादी की जरूरत है? आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, एक तरफ वो निजाम जो औरत को बाजार मिलाकर उसकी नुमाइश करता है, और दूसरी तरफ वो इस्लाम जो औरत को अपनी बेटी, अपनी बीवी और अपनी माँ बनाकर उसे इज्जत और तकद्दुस देता है। आपको कौन सा निजाम पसंद है? वो जहाँ औरत पब्लिक प्रॉपर्टी हो या वो जहाँ औरत घर की इज्जत और बरकत हो? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, इसलिए कि आपका एक कमेंट किसी की जिंदगी बदल सकता है। जब एक औरत पर्दे में होती है तो दुनिया उसे उसके जिस्म से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके इल्म और उसके किरदार से पहचानती है। पर्दा एक ऐलान है कि मैं कोई आम चीज नहीं हूँ कि हर राह चलता मुझे अपनी नजरों का निशाना बनाए। ये औरत के वकार की सबसे बड़ी ढाल है। एक बहुत सादा सी मिसाल से समझते हैं कि दुनिया की हर कीमती चीज पर्दे या गिलाफ में होती है। काबा अल्लाह का घर है, उसे गिलाफ में रखा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है, उसे जुज़दान में रखा जाता है। यहाँ तक कि एक कीमती हीरा भी हमेशा तिजोरी में महफूज होता है। अगर हीरे को सड़क पर फेंक दिया जाए तो क्या वो महफूज रहेगा? हरगिज नहीं। इसी तरह इस्लाम औरत को एक कीमती हीरा समझता है और पर्दा वो तिजोरी है जो उसे जमाने की गंदी नजरों और हर किस्म के इस्तेहसाल से महफूज रखती है। पर्दा कैद नहीं है, बल्कि ये प्रोटेक्शन है। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिसने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई, फातिमा अल-फिहरी ने, क्या उस यूनिवर्सिटी में पर्दे की पाबंदी थी? क्या आज हमारी माएँ और बहनें पर्दे के साथ और हिजाब के साथ डॉक्टर नहीं बन रही हैं? क्या हमारी
माएँ और बहनें IPS ऑफिसर नहीं बन रही हैं? क्या हमारी माएँ और बहनें टीचर्स नहीं बन रही हैं? बिल्कुल बन रही हैं। तरक्की का ताल्लुक दिमाग से होता है, लिबास के कम होने से नहीं। अगर जिस्म दिखाना ही तरक्की होता तो फिर शायद जंगली जानवर हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होते। पर्दा वकार और शान और इज्जत की अलामत है। मेरे अजीजों, अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर जदीद जहनों में डाला जाता है कि कपड़े कम करना तरक्की की अलामत है। आइए जरा अक्ल से काम लेते हैं। अगर जिस्म की नुमाइश करना, कपड़े उतारना या बढ़ाना होना ही तरक्की का मेयार होता तो इस मंतिक से तो जानवर दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होते, क्योंकि वो तो कोई लिबास ही नहीं पहनते। इंसानियत और हैवानियत के दरमियान सबसे बड़ा फर्क ही लिबास और हया है। जानवर अपनी फितरत में आजाद है, वो जैसे चाहे रहे, लेकिन इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और उसे हया का लिबास अता किया है। तो जिस्म दिखाकर हम तरक्की कर रहे हैं या वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं? अगर हम तारीख उठाकर देख लें तो इंसान की तरक्की लिबास की कमी से लेकर लिबास की तकमील तक रहा है। जब इंसान के पास अक्ल और वसाइल नहीं थे, वो पत्तों और खालों से जिस्म छुपाता था। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, उसका लिबास बेहतर और बावकार और मुकम्मल होता गया। लिबास की कमी तरक्की नहीं बल्कि पस्ती और ज़माने जाहिलियत की तरफ वापसी है। अमेरिका हमें जदीद बनाने के नाम पर दरअसल उसी पुराने दौर की तरफ ले जा रहा है जहां इंसान नंगा रहा करता था। तो खुलासा ये है कि औरत की आजादी बाजार की जीनत बनाने में नहीं है, बल्कि उसे वो इज्जत और तकद्दुस देने में है जो इस्लाम ने आज से 1450 साल पहले मुकर्रर किया है। अमेरिका की आजादी दरअसल आजादी नहीं है, बल्कि एक जाल है जिसमें हमारी औरत के साथ इस्तेहसाल किया जा रहा है, यानी उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी इज्जत को बेचकर डॉलर कमाए जा रहे हैं। औरत उसी वक्त आजाद है जब वो अपने घर की मलिका है, जब वो अपने घर में इज्जत के साथ है, जब उसे नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है और ये पैगाम हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो अभी और इसी वक्त ये वीडियो अपनी माओ, अपनी बहनों के पास और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सके और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजार सके।